بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو AS ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک شارٹ سٹوری جس کا نام ہے جسے خوئے شکر نہ ہو، اور رائٹر کا نام ہے رخسانہ نگار۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج پھر چائے اور روٹی، مجھے نہیں کرنا ناشتہ۔ مائرہ کالج یونیفارم میں تیار ہو کر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، برآمدے میں حسن، ولید اور ربیہ کو سوکھی روٹیاں چائے میں ڈبو ڈبو کر کھاتے دیکھ کر تیزی سے بولی، پتہ تھا مجھے، اور کوئی بولے نہ بولے تو ضرور بولے گی۔ امی کچن ہی سے گرج کر بولی، ہاں تو مجھ سے نہیں کھائی جاتی صبح صبح یہ سوکھی روٹی، مجھے آپ بریڈ کے ساتھ آملیٹ بنا دیں۔ اس نے اسی طرح تیز لہجے میں جواباً کہا، ہاں تیرا باپ اسمگلر ہے نا، تجھے اتنی مہنگی تعلیم بھی دلوائے، تجھے پہننے کو بھی اعلیٰ پوشاک چاہیے اور کھانے کو منو سلوا، جیسے تو ہی ایک لاڈلی ہے اپنے ماں باپ کی، یہ باقی کے چار تو ہیں ہی نہیں، خود غرض لڑکی۔ امی بولتے بولتے ہاتھ میں پیڑا لیے باہر نکل آئیں۔ کیا بات ہے؟ کیا جھگڑا ہے صبح صبح؟ ابو باتھ روم سے باہر آتے ہوئے کچھ سخت لہجے میں بولے، نواب زادی کے حلق میں اللہ کا رزق کانٹے اگاتا ہے، روٹی نہیں کھائی جاتی اس سے، فرماتی ہیں ڈبل روٹی لاؤ آملیٹ کے ساتھ۔ اسی غصے میں ہاتھ ہوا میں لہرا کر امی بولی، تو دے دو نا اس کو جو کہتی ہے، وہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے تولیے سے سر رگڑتے ہوئے بولے، کہاں سے دے دوں ایک تنخواہ میں؟ کہتے ہوئے وہ خود ہی رک گئیں۔ نثار احمد کے ہاتھ بھی وہیں تھم گئے تھے۔ کھا لے گی یہی، ویسے ہی نخرے دکھانے کی عادت ہے اسے۔ مائرہ چلو چپ کر کے ناشتہ کرو۔ امی کا غصہ اور ناراضی کچھ التجا میں ڈل گیا تھا۔ نثار احمد چپ چاپ مڑ کر اندر کمرے میں چلے گئے۔ 2 ماہ پہلے ہونے والے ان پر انجائنا کے اٹیک نے سب کو ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں کوئی بھی ٹینشن دینے سے منع کیا تھا۔ اسی دن سے عذرا بیگم نے سب بچوں کو سختی سے سمجھا دیا تھا کہ باپ کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرنا، مگر مائرہ جس نے شروع ہی سے اپنے منہ سے نکلی ہر فرمائش پوری ہوتے دیکھی تھی، اسے بار بار سمجھانے کے بعد بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نثار احمد 15 گریڈ کے معمولی سرکاری ملازم تھے، گھر بھی اپنا نہیں تھا، پھر 5 بچے، دونوں میاں بیوی، خود ان کی والدہ کا انتقال بھی 6 ماہ پہلے ہوا تھا، پھر بچوں کی تعلیم، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ان کی تنخواہ میں یہ سب مہیا کرنا بہت مشکل تھا۔ آبائی گھر بکنے کے بعد تینوں بھائیوں کے حصے جو رقم آئی تھی، نثار احمد نے وہ رقم اپنے ایک قریبی دوست کے ساتھ پولٹری فارم کے کاروبار کی شراکت میں لگا دی۔ دونوں میں ہی اچھا خاصا منافع آنے لگا۔ شام کو اکثر وہ آفس سے فارغ ہو کر پولٹری فارم پر چلے جاتے، اور کچھ دنوں میں ہی بیگم نے اپنی کفایت شعاری سے کمیٹیاں ڈال کر بچت جمع کر کے اتنا روپیہ اکٹھا کر لیا کہ انہوں نے 7 مرلے کا ایک پلاٹ بھی خرید لیا۔ امید تھی کہ 2-1 سالوں میں مزید اتنا جمع ہو جائے گا کہ گھر بھی بن جائے گا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ برڈ فلو کی وبا پھیلی اور ان کے پولٹری فارم کی ساری مرغیاں دنوں میں ہی چٹپٹ ہو گئیں۔ جو بچیں انہیں اونے پونے بیچ دیا گیا، کچھ اور مال ڈالا گیا، مگر وہ بھی اسی وبا کی نظر ہو گیا۔ رفتہ رفتہ سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ ان کا دوست بھی اچھا خاصا بددل ہو گیا، کچھ قرض بھی چڑھ گیا جسے اتارنے کے لیے فارم ہی بند کرنا پڑا۔ یوں اچھا بھلا سائیڈ بزنس چلتے چلتے ختم ہو گیا۔ آمدنی کا یہ در کیا بند ہوا، ان کے گھر میں جیسے افلاس نے پر پھیلانے شروع کر دیے۔ مالک مکان نے یک مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا، دوسرا گھر ڈبل کرائے پر ملا اور پہلے جتنا کشادہ بھی نہیں تھا۔ آمدنی گھٹنے سے گھر میں مالی مسائل باہمی رنجشوں کا باعث بننے لگے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی تھی۔ روزمرہ کے اخراجات میں سے کرایہ نکال کر تنخواہ سے پورا کرنا محال ہو گیا۔ روز کی چک شروع ہو گئی۔ بچوں کی فیسیں لیٹ ہونے لگیں، پھر کوئی بچہ بیمار پڑ جاتا تو علاج کے لیے پیسے نہ ہوتے، اور آخری دھچکا نثار احمد کے ہارٹ اٹیک نے پہنچایا۔ اگرچہ ان کا علاج سرکاری خرچ پر ہوا تھا، مگر غذائی پرہیز اور دوسرے بہت سے اندھے اخراجات میں عذرا بیگم کی ساری بچت اس میں اٹھ گئی۔ اس دن سے گھر میں لڑائی جھگڑے تو ختم ہو گئے، کیونکہ عذرا بیگم نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب نثار احمد کو کسی قسم کی ذہنی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا۔ ان کی زندگی سے بڑھ کر تو انہیں کچھ بھی
अजीज नहीं था। उन्होंने आजकल प्लाट अच्छी कीमत पर बिकने के लिए लगा रखा था कि उससे कोई छोटा मोटा घर खरीद कर किराए की इस इजाफी मद को ख़त्म किया जाए, मगर मायरा इन हालात से समझौता नहीं कर पा रही थी। बात बात पर माँ और बहन भाइयों से उलझ पड़ती। आज भी वो बगैर नाश्ता किए घर से चली आई। पॉकेट मनी के नाम पर सारे बच्चों को हफ्ते भर में 50 रुपए मिलते थे, तकरीबन 7 रुपए रोजाना, जिसमें कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल भी नहीं आती थी। मायरा तो अपना पॉकेट मनी 3 दिनों में ही खत्म कर देती। उसके बाद उसकी नाराजगी का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता। हालांकि बाकी बहन भाई उसके मुकाबले में बहुत बर्दाश्त और हौसले का मुजाहरा कर रहे थे। उससे छोटे होने के बावजूद, चलो भाई मैडम राना का पीरियड शुरू होने वाला है। वो दूसरे पीरियड के बाद ही सर में होने वाले दर्द की वजह से सर थामे बैठी थी जब रिदा ने उसे झंझोड़ा, मगर वो उस पोजीशन में बैठी रही। क्या बात है, बैठे बैठे सो गई हो? सर में दर्द है बहुत। वो सर उठाते हुए बोली। खैरियत, क्या रात भर कवालियाँ सुनती रही हो? सोनिया पीछे से बोली। नाश्ता नहीं किया इसलिए सर में दर्द है। वो किताबें समेटने लगी। तो गोया डाइटिंग कर रही हो? रिदा बोली। भाड़ में गई डाइटिंग। वो उकताकर किताबें उठाकर खड़ी हो गई। तो फिर नाश्ता क्यों नहीं करके आई? वही चाय रोटी मुझे सख्त नापसंद है और अम्मी रोज ही आगे रख देती हैं। वो कुर्सी धकेल कर बाहर निकली। तो तुम कुछ और खा लेती ना, जैम स्लाइस ले लेती या चिकन स्प्रेड या कुछ और। सोनिया ने गोया उसे छेड़ा। हाँ, तुम ये बातें नहीं करोगी तो और कौन करेगा? बिजनेसमैन की बेटी हो ना, नाश्ते में एक आइटम थोड़ा होता है तुम्हारी टेबल पर। और मेरे वालिदे मोहतरम मामूली मुलाजिम हैं जिनकी आधी से ज़्यादा तनख्वाह किराए में उठ जाती है और बाकी से ज़िंदगी की ज़िल्लतों का सामना करने के लिए दाल रोटी का ज़ख़ीरा जमा कर लिया जाता है। वो तलखी से बोली। हाँ ये तो है, आजकल जितनी महंगाई है उसमें बेचारे मुलाजिम जिस तरह गुजारा करते हैं उन्हीं का हौसला है। पापा तो खुद कहते हैं शुक्र करो तुम्हारे फादर बिजनेसमैन हैं, वरना इस महंगाई के दौर में पता चल जाता। रिदा भी जल्दी से बोली। और बिजनेस भी तो माशाल्लाह तुम लोगों का खूब सेटल्ड है। एक हमारे अब्बू जान ने पोल्ट्री फार्म का काम किया, चलो गुजारा तो हो ही रहा था। बर्ड फ्लू की जद में और लोग भी तो आए, मगर झाड़ू सिर्फ हमारे बिजनेस पर फिरी। ऐसी तरस वाली जिंदगी कौन जीना चाहेगा? जी चाहता है मर जाओ। सड़क पर निकलो तो एक से बढ़कर एक 0 मीटर गाड़ी, हर तरफ खाने पीने के आला से आला रेस्टोरेंट, और हमारी जेब में एक बर्गर खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। ऐसे में मरने को जी नहीं चाहेगा तो और क्या चाहेगा? वो जले कटे अंदाज में बोली। इतनी भरी जवानी में मरने की बातें। बुरी बात मायरा डियर, आज तो तुम्हारा मूड बहुत ऑफ लग रहा है। चलो क्या याद करोगी, माँ बदौलत अपनी जेब से तुम्हें जबरदस्त लंच कराते हैं। चलो कैंटीन चलते हैं। रिदा फराख दिली से बोली। थैंक्स, मेरी बातों का ये मतलब नहीं था। वो कुछ झींप कर बोली। ऐसी गैरियत की क्या बात, वी आर फ्रेंड्स। रिदा बेतकल्फी से उसका हाथ थाम कर बोली। नहीं यार, मैडम रजा का पीरियड अटेंड करना है। वो नीम रजामंदी से बोली। हाँ, मैडम रजा का पीरियड तो तुम किसी हाल में मिस नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो? मायरा ने पूछा। हरगिज नहीं, वो भी हंसकर बोली। हाँ भाई, मैडम रजा का ही तो एक पीरियड होता है जिसे हम कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे। कितना अच्छा अंदाज होता है उनका पढ़ाने का। फिजिक्स जैसा खुश्क मजमून वो ऐसे पढ़ाती हैं जैसे उर्दू या इस्लामियात, वरना पहले तो मेरा फिजिक्स रखने का इरादा भी नहीं था बीएससी में। यही तो बात है, जब से मैडम रजा ने पढ़ाना शुरू किया है, यकीन करो मेरे 70% से कम कभी मार्क्स ही नहीं आते। मायरा जोश से बोली। और क्या, सबका यही हाल है। फिर उनके पीरियड में जाकर जो फ्रेशनेस मिलती है वो सारे दिन के लिए काफ़ी होती है। इस उम्र में भी कितना अट्रैक्टिव फिगर है उनका, दिल करता है बस उन्हें देखते जाओ, सुनते जाओ। और ड्रेसिंग ऐसी गजब की करती हैं कि बंदा स्टार प्लस का जादू भूल जाए। सोनिया बोली। तुम स्टार प्लस की मिसाल देना ना भूलना। रिदा ने उसे चपत लगाई। तीनों क्लासरूम तक पहुंच चुकी थीं। मैडम रजा क्लास में आ चुकी थीं। धानी कलर की खूबसूरत शिफॉन की साड़ी का बॉर्डर ब्लैक और सिल्वर आउटलाइन से बना दूर से चमक रहा था। उनका मुस्कुराता सेहतमंद चेहरा उनकी दिली खुशी का गमाज था। तीनों ने बैक वक्त मे आई कम इन मैडम कहा तो वो मुस्कुराते हुए मुड़ी
और सर हिला दिया। श्योर, कम इन 3 स्टार ऑफ द क्लास। उन्होंने तीनों को मुस्कुरा कर देखते हुए अंदर आने की इजाजत दी तो तीनों जल्दी से दूसरी रो में कुर्सियों की तरफ बढ़ी जो फायजा ने उनके लिए रखी थी। मैडम रजा ने अपने दिलकश आवाज में लेक्चर शुरू कर दिया था। यार क्या बात है, मैडम रजा कितने दिनों से आ ही नहीं रही। सोनिया और मायरा ग्राउंड में बैठी थी। मैडम रजा के ना आने से उनका तीसरा पीरियड आजकल फ्री चल रहा था। हाँ, मालूम नहीं क्या बात है, वरना उन्होंने पहले तो कभी छुट्टी नहीं की थी। तुम्हें मैडम आयशा से पूछना चाहिए था, वो अक्सर उनके साथ ही होती थी। पूछा था, वो कह रही थी 1-2 दिन में आ जाएंगी। अब तो हफ्ता हो चला है। अरे तुम लोगों ने कुछ सुना? रिदा तकरीबन भागते हुए आई थी। बैग उनके पास फेंकते हुए बोली, आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। सारे ग्राउंड में लड़कियां टोलियों की शक्ल में जमा थी। क्या नहीं सुना हमने जो तुम सुनाई हो? मायरा उसका सुर्ख चेहरा देखकर बोली। मैडम रजा, शौकत खानम हॉस्पिटल में एडमिट है। उसने गोया धमाका किया। वो दोनों लम्हा भर को सन्नाटे में आ गईं। क्या क्या बकवास कर रही हो? मायरा हस्बे आदत कुछ गुस्से में बोली। बकवास नहीं यार, सच है। मैं अभी स्टाफ रूम से आ रही हूँ। मैडम बल्कीस और मैडम इफ़्फ़त यही बातें कर रही थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताते हुए ताकीद की है कि किसी और से जिक्र ना करना। मैं तो रूम नंबर भी पता कर आई हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी। तो क्या तुम उन्हें देखने जाओगी? तो क्या तुम नहीं जाओगी? वैसे तो बड़ी आशिक बनी फिरती थी मैडम रजा की। रिदा तंज से बोली। वैसे यार जानना तो चाहिए, हमारी इतनी अच्छी टीचर हैं, हमारी आइडियल, फिर इस तरह बीमार। मेरा तो सुनकर ही दिल बैठने लगा है। सोनिया बोली। क्या करें फिर? मायरा जल्दी से बोली। भाई मेरी गाड़ी आती है ना, तो उसी में चलेंगे। असल में उधर की टाइमिंग इस तरह की है कि अगर हम कॉलेज के बाद जाएंगे तो विजिट आवर हमें मिल जाएगा। रिदा जल्दी से सारा प्रोग्राम बनाते हुए बोली। घर में तो पता नहीं किसी को देर हो जाएगी। सोनिया बोली। हाँ ये तो है, मेरी भी अम्मी परेशान हो जाएंगी। मायरा कहने लगी। तो चलो फिर कल पर रख लेते हैं, पर जाना जरूर है। रिदा उठते हुए बोली तो दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। अगले रोज वो छुट्टी से 2 पीरियड पहले ही निकल आई थी। रिदा ने ड्राइवर को जल्दी आने का कह रखा था। हॉस्पिटल यूं भी उनके कॉलेज से काफी दूर था। जाते जाते पूरा 1 घंटा लग गया। वैसे तुमने कंफर्म कर लिया था ना कि मैडम रजा उधर ही हैं? गाड़ी हॉस्पिटल के गेट में दाखिल हुई जब मायरा ने रिदा से पूछा, तो क्या मैं पागल हूँ जो यूं ही तुम लोगों को इतनी दूर लेकर आई हूँ? चलो अब। रिदा कुछ बुरा मानकर बोली। उस वक्त वाकई विजिट आवर था। उन्होंने झिझकते हुए रूम नंबर 30 के दरवाजे पर होले से दस्तक दी। सुर्ख फूलों का खूबसूरत बुके मायरा ने थाम रखा था। यस, नर्स की मुहीन सी आवाज आई थी। तीनों आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुईं। बिस्तर पर पड़ा कमजोर सा वजूद एक पल को उन्हें अजनबी सा लगा। सिर्फ 1.5 हफ्ते में मैडम रजा की दिलकश वजूद की सारी रानाइयां नुचड़ कर रह गई थीं। चेहरे के गुलाब मुरझाए हुए लग रहे थे। रोशन दियों से झिलमिलाती आंखें अंदर को धसी हुई लग रही थीं, जिनके गिर्द स्याह हल्के डेरा जमाए हुए थे। चेहरे की शिगुफ्तगी और लताफत तो रुखसत हो गई थी, मगर मुस्कुराहट की झिलमिलाहट उसी तरह लो दे रही थी। वो इन तीनों की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी। तीनों ने आहिस्तगी से सलाम करके बुके उनके सरहाने रखा। बच्चों, आपने क्यों तकलीफ की? वो तीनों से बारी बारी हाथ मिलाते हुए उसी दिलकश आवाज में बोली। सॉरी मैडम, हम आपसे नाराज हैं। मायरा के मुंह से अचानक निकला था। रिदा और सोनिया ने उसे घूर कर देखा। पता नहीं वो अपनी जुबान को काबू में क्यों नहीं रख सकती थी। वो क्यों भाई? वो मायरा का हाथ अभी तक थामे हुए थी। सिस्टर ने उनका बेड चढ़ाने की तरफ से खासा ऊंचा कर दिया था। आपने कभी जिक्र नहीं किया अपनी बीमारी का, और ये कोई अचानक होने वाली बीमारी तो नहीं? मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। मायरा कहते कहते आंखों में आंसू ले आई। और ये सच भी था कि वो रात भर ठीक से सो नहीं सकी थी। माय डॉटर, थैंक यू। लेकिन बेटा, ना तो ये कोई खुशखबरी थी जो मैं आपसे शेयर करके आप लोगों को खुश करती, और गम तो बहुत है ज़माने में, मैं क्या इजाफा करती। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोली। तो आपने हमें गैर समझा, हम तो आपसे इस कदर मोहब्बत करते हैं। सोनिया बोली। अरे नहीं बेटा, गैरियत वाली कोई बात नहीं, बस। वो रुक गई। बस क्या मैडम, आप कब से बीमार हैं? मेरा मतलब ये ब्लड कैंसर। तकरीबन 2 साल होने को आए। वो गहरी सांस लेते हुए बोली। फिर भी, और हमें तो कभी जरा सा भी महसूस नहीं हुआ कि आप बीमार हो सकती हैं। मैं भी बशर हूँ बेटा,
मुझे इस उन्वान पर मौजूए गुफ्तगू कभी भी पसंद नहीं रहा। मुसलसल ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है सब रिपोर्ट्स बहुत पॉजिटिव आई हैं। डॉक्टर भी मुतमईन है। वो अपनी अच्छी खासी खस्ता हालत को ठीक कह रही थी। आपके किसी कोलीग को भी इल्म नहीं था? वो तो मिस आयशा आपके घर गईं तो इल्म हुआ। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। वो थोड़ा आगे बोली। मैं शायद 6ठी 7वीं में पढ़ती थी। फारसी की किताब में एक छोटा सा किस्सा बयान किया गया था कि एक मालिक ने अपने मुलाजिम को कड़वी ककड़ियाँ खाने को दी। वो मुलाजिम मज़े ले लेकर सारी कड़वी ककड़ियाँ खा गया। उसका मालिक बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, भाई ये तो बहुत कड़वी ककड़ियाँ थी, कोई भी नहीं खा सकता था, तुम कैसे खा गए? तो मुलाजिम ने जवाब दिया कि मालिक, ककड़ियाँ तो वाकई कड़वी थी, मगर ये मुझे आपने खाने के लिए पेश की तो मैं इनकार नहीं कर सका। आप मुझे जिंदगी भर इतने मजे मजे के खाने भी तो खिलाते रहे, अगर एक दिन कड़वी चीज खाने को दी तो क्या हुआ? आपका नाशुक्रा बन बैठता। बस ये छोटा सा किस्सा ऐसा मेरे दिल में जम कर बैठा कि फिर मैं इसके ट्रांस से उम्र भर निकल ही ना सकी। जिंदगी में बहुत से क्राइसिस आए, खुशियां भी मिली और गम भी, मगर तुम मेरे इर्द गिर्द के लोगों से पूछ लो जो कभी मैंने किसी से इजराह गुफ्तगू भी की, कभी किसी तंगी, किसी परेशानी, किसी दुख का जिक्र किया हो। मुझे लगता है अगर मैं अपना दुख, अपनी परेशानी किसी से कहूँगी तो ऐसा लगेगा जैसे मैं अपने मालिक की, अपने अल्लाह की शिकायत लोगों से कर रही हूँ कि देखो मेरे मालिक ने मुझे कैसे हालों में रखा है। और जो अल्लाह ऐसे में मुझसे पूछ ले कि इतने दिन मैंने तुम्हें इतने अच्छे हाल में भी तो रखा, वो भूल गई। अब जरा सा गम आ पड़ा है तो लोगों से गम हल्का करने के बहाने शिकायतें करती फिर रही हो, ये कितने शर्म की बात है। और मुझे इस बात से शर्म आती रही कि मैं अपने मालिक की नाशुक्री बनकर अपनी हालत बयान करती फिरूं। कई दफ़ा इतने बुरे हालात भी आए कि जेब में फूटी कोड़ी ना थी और घर में खाने को कुछ ना था। अज़दवाजी जिंदगी में भी बहुत से उतार चढ़ाव, तलखियां, रंजिशें आती रहीं। बहन भाइयों से भी बेगानगी के गिले रहते, बहुत से अनकहे अनदेखे दुख इस मट्टी के वजूद पर बेमौसम बारिश की तरह बरसे। मगर मेरे बच्चों, मैंने अपना हाल अपने अल्लाह के सिवा किसी से नहीं कहा। मैं खामोशी से सहती रही, अच्छे बुरे दिनों में शुक्र करती रही और वो मुझे नवाजिशों से, नेमतों से भरता गया। और ये बीमारी भी तो उसकी तरफ से है। उसने इतने सारे दिन सेहतमंदी के दिए। अब अगर चंद दिन, चंद साल बीमारी के आ गए तो क्या मैं रोना रोती फिरूं? नहीं, कभी नहीं। अल्लाह की शिकायत लोगों से करूं? कभी नहीं। लोग मेरा रोना सुन सकते हैं, आंसू पहुंच सकते हैं, मगर उनका मुदावा नहीं कर सकते। मुदावा सिर्फ मेरा मालिक कर सकता है। सो मैं अपना दुख बयान करके क्यों अपनी नजरों में हल्की हूँ? बस यही वजह है इस बीमारी को पोशीदा रखने की भी। उन्होंने बात खत्म करके आंखें मूंद ली। सोनिया और रिदा तो न जाने क्या सोच रही थी, मगर मायरा की जैसे किसी ने आंखें खोल दी थी। अक्ल के सारे दर वाह हो गए थे। और मैं अपने मालिक की कैसी बेवफा नाफरमान लोंडी हूँ जो जगह जगह अपनी मजलूमियत के अफसाने जबान पर लिए फिरती हूँ। गिनती के चंद कठिन दिन आने पर मैं सारी उम्र की आसाइशें, मज़े भूल गई। खुद को खुद ही दूसरों की नज़रों में गिराती रही। अब्बू मेरे बारे में क्या सोचते होंगे जो सुबह अम्मी से कह रहे थे कि वो आजकल में पार्ट टाइम जॉब शुरू करने वाले हैं, और अम्मी जिन्होंने कई दिनों से छुप छुपा कर सिलाई का काम शुरू कर दिया है क्योंकि मुझे सर्दियों के नए कपड़े, जूते और बुनेंजा की एक जर्सी चाहिए। लानत है मायरा तुम पर। तुम कैसी बेटी हो जिसके दिल में अपने प्यारों की मुश्किलों का एहसास ही नहीं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने मुझे जो सबक आज पढ़ाया है सारी जिंदगी मेरी राहों में ये मशल बनकर रहनुमाई करेगा। वो खुद से कह रही थी। क्या सोच रही हो? रिदा ने बाहर के नज़ारों से नजरें हटाकर पूछा। कुछ नहीं, मैडम के लिए दुआ कर रही थी। वो इस मुस्कुराहट के साथ बोली जो मैडम रजा के दिलकश चेहरे का हिस्सा थी और अब उसके चेहरे पर हमेशा के लिए सजने जा रही थी एक मुतमईन अलूही मुस्कुराहट। जी तो लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लें। शुक्रिया।